Okay, so good evening and welcome. My name is Shashidhar. I'm your host, and I welcome you all to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet. And as usual, this is our Wednesday meet, and I welcome you all. So let's have some sharing from our regular members and the new guests. So we have new guests, Kalpana ji, Deepak ji, and we have Sushri Saryu and Kamini ji. Yeah. Thank you, Sushri. Sushri is in HR, and I requested. She's attended our this program about a month back. Yeah, thank you, Sushri. So anything the guest wants to share something of their about themselves in a couple of lines, so they're welcome in case they want to do that. Or the guests who have invited them can share something about them. So let me just say something about Kalpana ji and Deepak ji. So I've interacted with them, and they are my guests, and I invited them to be here today so that they can learn more about spiritual healing and what is possible for them in their lives, right? So that's it, Kalpana ji and Deepak ji. Whenever you feel that you are comfortable to share, आप share कर सकते हैं. Otherwise, you can enjoy the session, get values out of this, and maybe towards the end of the session you can share something, right? Good. So Amit ji, आपके जो guests हैं, Kamini ji and Sushri, would they like to share something? आप कुछ बताना चाहेंगे? Hi, this is Sushri. I have actually attended your session earlier as well. So I look forward. I'm sure this is going to be a good learning as well. Thanks, Amit, for inviting. Welcome, Sushri ji, and welcome, Kamini ji, if you want to share something. Yeah, hi. Right now, I think first let me attend the session, then probably I'll be, able to say something. Sure. So you are Yeah. welcome to the program, and enjoy Thanks enjoy for the taking interactions me here, the session. and we can definitely get a lot of value from your sharings as the program goes on. So whenever you feel comfortable and whenever you feel appropriate, you can put in your comments or your shares. Yeah, thank you. Okay, so now coming to the regular members. How are we? कैसा चल रहा है? Last week कैसा था? Breakthroughs, breakdowns, amazing results. Fine. क्या चल रहा है लाइफ में? सही चल रहा है सर. सब सही चल रहा है. रेखा जी ने स्टैम्प लगा के बता दिया सब सही चल रहा है. Very good, very good. Okay. Yes. Anybody else? Welcome Gunjan ji and welcome Leslie. Anybody who wants to share सर something? आपको मेरे vibes पता है. I know I've been interacting with you, so a lot of magical results in Gunjan's life because of the healing, and she's very happy and excited. और आज डिनर छोड़ के आई हैं, so very good. नहीं, फटाफट 15 मिनट में बना कर आई हूँ. That's it. You should adjust. If something is valuable for you, you should go for it wholeheartedly. Not like कर लूंगी होगा, ऐसा नहीं होता है. If you want something, go and grab it. That's how life is, and especially spiritual journey में अगर आपको interest है, तो spirituality का कोई भी opportunity छोड़ना नहीं है, right? So great, good that you are here. Okay, good. Now let's have some movement or momentum in this program. So what is the agenda for this week? जो हमारे regular members हैं, मैंने group में डाला था. What is the agenda for this week? कौन बताएंगे? Except Sanjeev, anybody else who can? Second limb. Second limb. In the Ashtanga Yoga. Yeah. Ashtanga Yoga. Okay, so पतंजलि's अष्टांग योगा का जो सेकेंड लिम्ब है, सेकेंड पार्ट है, उसके बारे में आज हमारा डिस्कशन है एंड क्वेश्चन बेस्ड डिस्कशन है एंड एनालिसिस. ओके, हाउ दैट अप्लाइज इन आवर लाइफ, हाउ वी कैन गेट वैल्यू. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट. सो ऑब्वियसली सेकंड स्टेप की बात कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट स्टेप पहले कर चुके हैं. तो सबसे पहले थोड़ा सा एक रिकैप कर लें फटाफट क्वेश्चन आंसर सेशन में. हाँ, एंड आज प्रीति जी अभी नहीं आई हैं, तो रेनू जी हार संभालेंगी अगर कोई अटक गया तो, राइट? सो बी रेडी रेनू जी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव द 8 पार्ट्स ऑफ द योगा एज स्पेसिफाइड इन पतंजलि's योग सूत्र. तेज पतंजलि ने अपने योग सूत्र में योग के अष्टांग योग के की बात करी थी. तो 8 पार्ट्स हैं योगा के जो उन्होंने बताया था. उसी क्रम में बताएंगे नंबर 1 नंबर 2 बोल के बड़ी क्लियरली, ताकि हमारे नए लोग जो आए हैं उनको भी क्लैरिटी हो. कौन बताएंगे? टोनी, गो हेड. Okay, first is Yam. Yes. Second is Niyam. Yes. Third is Asan. Fourth is Pranayam. Mm-hmm. Fifth is Pratihar.
Pratyahar, right? And 6th is dharana. 7th is dhyan. And 8th is samadhi. Perfect. Very good. Very good, Tony. Got it. Thank you. Absolutely perfect. Bang on. And we have already done the first part of the first limb of the 8 part, which is yam. तो यम के हम 5 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं हमारे पीछे 2 हफ्तों में, और पे काफी अच्छी डिस्कशन भी हुई थी हमारी, राइट? तो यम के 5 पार्ट्स कौन बताएंगे? यम के 5 पार्ट्स कौन बताएंगे? यस पार्ट, गो अहेड. Yeah, it's ahimsa, अहिंसा, satya, सत्य, brahmacharya, ब्रह्मचर्य, non-stealing, अस्तेय, asteya, नॉन स्टीलिंग, करेक्ट, and non-attachment, aparigraha. अपरिग्रह, नॉन accumulation. Very good part, good job. So that was a quick fast recap, right? So anybody having any doubts on these 8 parts कौन से हैं और यम के 5 पार्ट्स कौन से हैं? इसमें कोई डाउट, कोई डिस्कशन, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो अभी पूछ सकते हैं. ये हम ऑलरेडी डिटेल्स में कर चुके हैं, करेक्ट? Now, if we have one word explanation of these 8 parts of the yoga, so let's have that. Okay, we are still in the quick fire round, रैपिड फायर राउंड में ही है अभी हम. तो यम का पहला अष्टांग योग का पहला पार्ट है यम. यम को एक वर्ड में क्या बोलेंगे? 1 या 2 वर्ड में क्या बोलेंगे? यम इज व्हाट? जो हमने अभी बताया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, राइट? तो यम का एक वर्ड क्या है? 1 या 2 वर्ड? चलो 3 वर्ड. External discipline. External discipline, very good, बहुत बढ़िया. Discipline, how to live in the external world, that means interacting with the external world. Good job, Rekha ji, very good. Okay, अब यम के जो 5 पार्ट्स थे उसका एक वर्ड में, हाँ, जो क्लियर है, बिल्कुल सही है, तो हम सीधा ही बोल देंगे उसे. तो फर्स्ट वन अहिंसा, एक वर्ड में कौन बताएंगे? जस्ट शाउट आउट. अहिंसा. Non-violence. Say that again, Tony. Non-violence. Non-violence, perfect. Ahimsa, non-violence, absolutely right. Satya. Truth. Eternal truth. Eternal truth, very good. तो truth and eternal truth, तो दोनों truth में ही आएगा, बढ़िया है. तो अहिंसा और सत्य हो गया. Then we have asteya. Asteya, non-stealing. Already we have said that. Okay. So non-stealing is asteya. Now brahmacharya. Brahmacharya. Divine behavior. Divine behavior, very good. So who said that? Tony said that, and somebody else said that. किसी और ने भी बोला. 2 आवाजें आई थी. Anyway. मैंने moderation बोला था. Moderation बोला था, perfect. So that is also good, right? So moderation or divine behavior. So moderation is part of the divine behavior, but actual translation is brahmacharya, brahman जैसा आचरण. That's how we actually संधि विच्छेद करेंगे, उसे break करेंगे तो which means divine behavior. So how is the divine behavior for a human being? That is what is actually brahmacharya. Within that, moderation is one part of it. Okay, great. And then we have aparigraha. So aparigraha क्या है? Exact translation. Hoarding. Hoarding तो समझने के लिए बताया था. A technical word is non-accumulation. Non-accumulation, yeah. Sorry. Yeah. So accumulation is parigraha. So aparigraha is non-accumulation. Clear, everybody? So we have the 8 parts of yoga, and we have yam and the 5 parts of yam clear. Now we are moving on to niyam. Niyam, एक वर्ड क्या है इसके लिए? ये भी हम ऐसे कर चुके हैं, जो बता सकें. क्वेश्चन आंसर सेशन में ही चलेंगे अभी हम. तो नियम क्या है? नियम डिसिप्लिन, वेरी गुड. सेल्फ डिसिप्लिन, गुंजन जी, वेरी गुड. So this is about self discipline. पहले हमने बताया था rules and regulations, do's and don'ts, discipline for how to interact with the outside world, बाहर की दुनिया के साथ, right? तो बाहर की दुनिया को हम कैसे बोलते हैं? वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति वाली जो दुनिया है, उसमें हम कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे. परफेक्ट रूल्स फॉर दैट, दैट इज यम. नियम इज योर इंटरनल सेल्फ डिसिप्लिन. आपके अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाने के लिए जिस डिसिप्लिन को आपने फॉलो करना है, तो उसको नियम के 5 स्टेप्स में बताया गया. So that is what is self discipline. What are the 5 steps now? जो ग्रुप में है उनको मालूम होना चाहिए, आज ही पोस्ट के. Let me see how many people attentively read the post. तो नियम के 5 पार्ट्स कौन बताएंगे? पहला पार्ट. First is शौच. शौच, very good.
फर्स्ट इज शौच, एंड शौच का वन वर्ड क्या होगा? Purity. प्योरिटी, प्योरिटी, क्लीनलीनेस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो शौच हो गया। दूसरा क्या है सेकंड पार्ट? संतोष, संतोष, वेरी गुड, संतोष, मीनिंग वन वर्ड? contentment, contentment, very good, and contentment we all know is the root for a joyful life. contentment होगा तो joyful life होगी, contentment नहीं होगा तो miserable life होगी, that is the foundation, so you can differentiate it that way. So if you want to live a joyful life or a miserable life depends on your level of contentment. चलिए discussion के बाद पे आएंगे, but what is the third part? Third part क्या है नियम का? Tapas. tapas, okay, what is tapas? Purification. Purification, okay, very good, Sincerity. थोड़ा deeper aspect बता दिया। तपस और क्या है? और भी मीनिंग है इसके, तपस के बहुत मीनिंग है। आज पोस्ट किसने पढ़ी है? पोस्ट ध्यान से नहीं zeal पढ़ी। for life, हाँ, zeal for Zeal life, for very life. good, very good, very good part, that was the exact word which was mentioned in the post. zeal for life, जब आपको लाइफ जीने की जो एक जुनून है या एक उत्साह है, zeal है, उसको बोलते हैं तपस। ओके, व्हाट एल्स? और भी है डेफिनेशंस इसके, तपस की और भी डेफिनेशंस हैं, क्या है? तप किसको बोलते हैं? तपस्या से उसको कनेक्ट कर सकते हो आप। तपस्या कब करते हैं हम? Determination. Determination, perseverance, very good, that is another definition of Persistence. tapas, right? Okay, more details we will go later on जब हम discussion पे आएंगे, लेकिन this is good enough. Everybody clear? तपस क्या है? तपस्या से मान सकते हैं उसे आपका वो कमिटमेंट, आपके वो डिसीजन मेकिंग, आपके वो एक्शंस जिससे आप स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, अभी यहाँ स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो स्पिरिचुअल जर्नी पे आप अडिग होके without any deviation you can follow that path, that is tapas. So anything that puts you forward on the journey and you're not going to stop, ना हटूंगा ना गिरूंगा ना पीछे जाऊंगा, बस आगे बढ़ूंगा, ये वाला जो जज्बा है इसको बोलते हैं तपस। and whatever is required for that I will do it, come what may, तो जो कमिटमेंट होती है come what may, that is तपस्या और तपस। okay, good, so we have covered on shauch, we have covered on santosh, we have covered on tapah and tapas. What is the fourth one? Fourth one क्या है? Swadhyay. स्वाध्याय, yes, स्वाध्याय। इसके ऊपर क्या बताएंगे? वन वर्ड क्या है? Self-study. हाँ जी, आवाज नहीं आई, दोबारा बोलिए। Sir, introspection Introspection, very good, and or self-inquiry. self inquiry, very good, self study, okay. Swadhyay, swa means your own, so adhyay means study, so study of self, that is the exact translation, okay. So introspection, self study, all this will be part of swadhyay. Okay, good, and the last part क्या है? नियम का last part क्या है? ईश्वर पराध्यान। हाँ, दोबारा बोलिए। ईश्वर परानिधान। ईश्वर प्राणिधान, very good, so ईश्वर प्राणिधान, or you can say ईश्वर प्राणिधाना, which is surrender to the divine, okay. All right, good, so good Kirti ji, and welcome. Right, so we have covered all the 5 steps of yam as a recap, and we have done 5 steps of the niyam. Now it is not really tough to understand this because we are used to this discipline, या तो हमको सिखाया गया है या सिखाने की कोशिश की गई है कहीं ना कहीं, हमने सीखा है या नहीं वो अलग बात है, but this is something which we all know. So we all know about स्वच्छता अभियान, तो हम बात कर रहे हैं स्वच्छता की, शौच की बात कर रहे हैं, so we are aware. Now what we have to understand is whenever we are talking of discipline, चाहे वो बाहर की दुनिया के लिए हो या अंदर की दुनिया के लिए हो, we are talking at 3 levels. कौन से 3 लेवल हैं? कौन से 3 लेवल पे बात हो रही है? Thought, words and action. Absolutely fine. Thoughts, words and action. सिर्फ सोच में नहीं, सिर्फ बोल में नहीं, आपके तीनों लेवल पे ये अप्लाई होना चाहिए. So you have to think, you have to say and you have to do it. यानी कि आपकी सोच में, आपके कहने में और आपके करने में कोई फर्क नहीं होना चाहिए. It should be all aligned. इसको बोलते हैं मनसा वाचा कर्मणा, सुना होगा आपने. हाँ, तो मनसा वाचा कर्मणा is basically you are absolutely aligned in your thoughts, in your words and in your actions. Perfect. So everything is here. Now consider, अगर हम प्यूरिटी की बात कर रहे हैं, हम क्लीनलीनेस की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ एक्सटर्नल वर्ल्ड की कर रहे हैं अगर हम, तो वो हो गया आपका स्वच्छता अभियान जो चल रहा है, हाँ, इंडिया में चल रहा है, गुड, दैट इज फॉर द आउटसाइड
आउटसाइड वर्ल्ड विच मीन्स एक्चुअली एक्शन में आ रहा है, बट हाउ अबाउट योर थॉट्स, वो कोई और आके नहीं करेगा, उसके लिए कोई मोदी जी कोई ऐलान नहीं करने वाले, ये आपको खुद ही करना है। कितने लोग सोच पे ध्यान देते हैं, अपने सोच को साफ रखना है, हाँ ये भी सोचता है कि नहीं, थॉट से शुरू होना है सबसे पहले, तो यू हैव टू क्लीन योर थॉट्स। अगर आप घर साफ नहीं करते तो क्या होता है, कुछ दिनों में क्या होगा, दिवाली के टाइम पे हम घर साफ सफेदी कराते हैं, घर को पेंट कराते हैं, बहुत कुछ कराते हैं, और कितना गंद निकलता है कोने कोने से, राइट। तो अगर हम डेली रूटीन पे कुछ सफाई करते हैं, डेली बेसिस पे भी आते हैं, घर में सफाई होती है, मेड आते हैं, सब लोग कुछ ना कुछ सफाई करते हैं रोज। एक वीकली सफाई होती है, छुट्टी वाले दिन, हाँ जरा सामान हटा के सफाई की जाती है, करते हैं कि नहीं घर पे। और एक होता है फेस्टिवल वाले से पहले, दिवाली से पहले, अब तो पूरा घर बढ़िया से साफ होगा, अब कॉबवेब्स की कोई गुंजाइश नहीं है, हर जगह से मकड़ी के जाले हटाए जाएंगे। तो यही चीज हमको अपने दिमाग में भी करनी है, रोज थोड़ी बहुत सफाई करनी है, वीकली थोड़ी ज्यादा सफाई करनी है, और कोई बहुत बढ़िया त्योहार का दिन आए, दिवाली या दशहरा या आपका बर्थडे या कोई एनिवर्सरी, तो आपको अच्छे से उसकी ड्रेसिंग पेंटिंग करनी है, राइट। तो सोच को भी आपको क्लीन करना है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर प्योरिटी, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर क्लीनलीनेस। सो राइट और रॉन्ग, कितने लोगों को ये अवेयरनेस है, कितने लोगों को ये अवेयरनेस है, कितने लोग करते हैं, जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड। घर की सफाई तो करती हैं लेडीज, आर वेरी पर्टिकुलर, बट देन अपने दिमाग की सफाई भी करनी है। ओके, गुड, वेरी गुड। सो फूड फॉर थॉट, तो ये हो गया क्लीनलीनेस, क्लियर है। इस पे और बात करने की जरूरत है? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? कैसे पता चलेगा थॉट्स नेगेटिव हैं या मैं नेगेटिव हूँ? सब लोग यही समझते हैं कि मैं पॉजिटिव हूँ, सबसे पूछो सारी दुनिया को चेंज होना चाहिए, दे आर ऑल नेगेटिव, आई एम वेरी पॉजिटिव। कितने लोग इस गलतफहमी में रहते हैं एवरीबॉडी एल्स इज नेगेटिव, आई एम द ओनली वन हु इज पॉजिटिव। तो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पॉसिबली आपको अपना जो आईज से जो बाहर देख रही हैं, जो इंद्रियां हैं बाहर जा रही हैं, उनको अंदर घुमाना है। आपको सबसे पहले अपनी सोच को ही सही करना है, अपने ही नजरिए को साफ करना है, तो आप देखोगे बाहर के लोग उतने नेगेटिव नहीं हैं, कुछ ना कुछ कमियां, और बल्कि ज्यादातर कमियां आपके अंदर ही हैं। बाहर की दुनिया को हमको कुछ भी नहीं करना, बाहर की दुनिया को कुछ भी नहीं करना है, मीन्स चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है। कितने लोगों को लगता है बाहर की दुनिया को चेंज करने से अपनी जिंदगी ठीक हो जाएगी? बॉस ठीक हो जाए तो काम बढ़िया हो जाए, हस्बैंड या वाइफ ठीक हो जाए तो लाइफ बहुत ही बढ़िया हो जाए, पड़ोसी बदल जाए तो बस जन्नत हो जाए, राइट। कितने लोगों को ऐसा लगता है? बैडली मिस्टेकन, लेट मी गिव यू द बैड न्यूज़। हाँ, पहले लगता था, पहले लगता था, गुड। सो नाउ यू हैव बिकम इंटेलिजेंट, राइट। अब विजडम आ गई है, पहले आप बुद्धिमान थे, अब विजडम आ गई है ओके, ग्रेट। सो बाहर की दुनिया में कुछ तो चेंज लाने की जरूरत होती है ना, मतलब लाइक लोग करते रहते हैं एफर्ट्स की कुछ ना कुछ। अब अगर हम ये स्वच्छ भारत अभियान ले लें तो वो भी तो बाहरी सफाई है, बट उससे कुछ ना कुछ हेल्प की चीजें तो हो ही नहीं है, लोग इस तरीके से कैंपेन्स करते ही हैं। बट हु इज डूइंग इट? तो Who is doing it? who is doing it? Others have to do it, or मतलब you have to do it? लोग ही इन्वॉल्व है। हाँ, मतलब अगर करना तो खुद करना है, बट हाँ ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना कि हाँ जी ये गलत है, दुनिया में थोड़ा इस तरीके से काम करना चाहिए, इस तरीके से बिहेव करना चाहिए। अब जो लोग रिसीव करते हैं देन उसके बाद चेंजेस आते ही आते हैं। तो मतलब ये भी तो एक तरीके की सफाई है जो जरूरी होती है। Absolutely है, बिल्कुल है। बाहर की दुनिया में, मैंने बोला ना, बाहर की दुनिया में स्वच्छता अभियान अगर करना है तो people can say, but who is going to do it for you? You have to do it. हाँ, Be the change that you want to see in the world. मेरा पॉइंट ये है कि इसमें मतलब ठीक है, इंटरनल वर्ल्ड एक अलग चीज है और उस पर ध्यान देना चाहिए कि लोग क्या होता है सिर्फ एक्सटर्नल वर्ल्ड पे ध्यान देते थे, चेंजेस करते करते अपने इंटरनल चीजों को ठीक नहीं करते, और उसकी वजह से जो नेगेटिविटी इकट्ठा होती है तो उनको दुनिया में हमेशा कमी ही दिखती है। दुनिया में कमी है, बट ठीक है, आप उसके साथ साथ अपने आप को भी एक बैलेंस मेंटेन करा जाए उसके अंदर, खाली वन साइडेड नहीं होना चाहिए। तो उसमें ये भी आता है कि आप सिर्फ अपने आप को ठीक करने में लगे हो और दुनिया को छोड़ दिया आपने उससे, तो ये तो थोड़ा सा वो हो गया ना, लाइक सेल्फिश वाली बात हो गई। If you're talking of environment, yes, you have to manage your environment. आपको वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी अकाउंटेबिलिटी है, तो आप अपनी अकाउंटेबिलिटी में एक्शंस तो लेंगे ही लेंगे। यहाँ पे पॉइंट दूसरी हो रही थी,
when we were talking of others, what we are saying is दूसरों को, जैसे आप अपने पेरेंट्स को चेंज कर रहे हैं या अपने हस्बैंड वाइफ को चेंज कर रहे हैं या अपने बॉस को चेंज कर रहे हैं कि वो चेंज हो जाए तो सब बढ़िया हो जाए, दैट विल नेवर हैपन, लेट मी टेल यू दैट। आप इतने सालों से लगे हुए हैं, खुद को चेंज नहीं कर पाए, किसी और को चेंज करना आसान है, अपने आप को चेंज करना आसान है। टॉकिंग ऑफ पीपल राइट नाउ, नॉट सिचुएशंस, नॉट थिंग्स। थिंग्स को तो आपको ही करना पड़ेगा, बाहर घर के बाहर कूड़ा पड़ा है तो आपको साफ करना पड़ेगा, दैट इज फाइन। काफी बार सिचुएशंस के अंदर लोगों की सोच भी तो इन्वॉल्व होती है ना, कि मतलब Think अगर about हम लोग it. चलो सच So think about it, right? थोड़ा सा ओके See, there are two situations in life. First of all, you have to understand what is being said and then try to apply that in your life and bring some changes. Correct? Obviously, बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया जो चल रही है आपकी, दोनों में इंटरेक्शन हो रहा है। बाहर की दुनिया आपको इफेक्ट करती है और आपका इफेक्ट बाहर की दुनिया पे पड़ता है। It is a constant interaction between the outside world and the inside world. Now, how to manage a balance between that, that is what is called art of living, right? Yes. But given this situation now, is it easier to change yourself or change somebody else? That's what I'm asking. Person की बात कर रहा हूँ। मतलब ठीक है, खुद को चेंज करना तो हम कह सकते ज्यादा आसान है, बट अब इसमें भी थोड़ी बहुत चीजें है ना कि आप या तो दुनिया के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, क्या ये मैंने कभी नहीं कहा दुनिया के हिसाब से अपने आप को चेंज करो, अपने हिसाब से अपने आप को चेंज करो। That is called स्वाध्याय, which is going to talk in the next step. Correct? So when we are talking of self study में आप क्या कर रहे हो? औरों के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं कर रहे, आप खुद देख रहे हो मेरे को क्या इंट्रोस्पेक्शन करके आप पता लगा रहे हो कि मेरे अंदर क्या ऐसी चीज है जो मेरे को ठीक करनी है। How is my inside world creating my life and how to make necessary changes in that, that is called स्वाध्याय, और इंट्रोस्पेक्शन के बाद सेल्फ स्टडी। ओके, तो हमने कितने स्टेप्स किए थे अभी? दिस वाज द, वी वर टॉकिंग ऑफ थर्ड स्टेप किया था हमने, शॉर्ट किया था, देन वी डिड संतोष, एंड देन वी डिड व्हाट वी डिड थर्ड, तपस। फोर्थ वन इज your swadhyay, self study or introspection. So self study or introspection is not, you don't have to compare yourself with others, you have to compare yourself with what you were, what you are and what you want to be. तो आपका कंपैरिजन या आपकी स्टडी सिर्फ अपने लिए है। ओके, जब आप किसी और को, बाहर की दुनिया को अपने सुख और दुख का कारण बनाते हो, then you are in trouble. Need to understand, because that is never in your control. If you want to be happy, you can't give your remote control to somebody else in your life, right? अगर आप अपने सुख और दुख का कारण किसी और को बना दोगे, अपने पेरेंट्स को, अपने बॉस को, अपने हस्बैंड वाइफ को, या अपने फ्रेंड्स को, या अपने नीबर्स को, then you have no power to be happy. आपने अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और को दे दिया। Yes or no? So do you think that life is a powerful life? No, not at all. So you can't give your remote control to somebody else. Love, peace and happiness is my birthright. I will keep the remote control in my hand. Correct? So you have to understand what is being said in the context of how to improve myself. आपको अपने अंदर की दुनिया को इतना स्ट्रांग बनाना है कि बाहर का इफेक्ट आपके ऊपर मिनिमम हो और आपका इफेक्ट बाहर की दुनिया पे बहुत ज्यादा हो। That is what will give you a perfect life. Which means आप अपने सुख और दुख का कारण बाहर की चीजों को नहीं, अपने अंदर की वर्ल्ड को बना रहे हो। That is in your control. आप अपने अंदर की दुनिया को चेंज कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। Right path? So being that inquiry, we will take that question from you again. But point here is, बाहर की दुनिया आप पे अफेक्ट करती है, आप बाहर की दुनिया को अफेक्ट करते हो, लेकिन कंट्रोल किस चीज पे है आपका? आपके अंदर की दुनिया पे आपका कंट्रोल है। That is the punchline which I wanted to tell you. Right? Okay, good. Now let us look at the fourth point. स्वाध्याय, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ स्टडी, क्या समझ रहे हैं इससे लोग? Anybody who wants to share something? जो अभी हमारी डिस्कशन हुई उस पर कोई और व्यू हो आपके तो बता सकते हो, राइट? या कोई डिस्कनेक्ट है या कुछ क्लैरिटी नहीं आई, you can ask question and let's move on to स्वाध्याय also. Right? Anybody? कोई डिस्कनेक्ट है? Suddenly silent हो गए सारे। Disconnect from what? Anything that is being discussed now? No, not at all. Connected? Very good, very good. Connected हैं, तो look into your life and see
what are the aspects that you need to improve or change, या क्या करना चाह रहे हो, just look at it. Correct. So we are talking of self discipline, we are talking of cleanliness, thoughts, words and action, outside world, inside world, सब कुछ included है उसमें. Okay. Inside world के लिए आप खुद responsible हो, outside world के लिए maybe the whole society or the community is involved. There also somebody will show the way and you will follow. कोई स्लोगन मिल गया जैसे भारत स्वच्छता अभियान, तो स्वच्छता अभियान में सब लोग जुट गए. Great. So man on a mission can inspire others to do the same. Perfect. Got it. That way actions has to be in community. Point taken. ये हो गया शौच. Then आ गया संतोष, contentment. Again, contentment we said is the जो बुनियाद है, फाउंडेशन है आपके एक हैप्पी रहने का या फिर एक जॉयफुल लाइफ जीने के लिए. Okay. Then we have third level tapasya. We said that so your perseverance, your hard work, not hard work, right, but your determination to be on the path of self realization no matter what. Spiritual journey को आगे बढ़ाना है no matter what. So that is the level of commitment which shows in tapa. Then we have self study, introspection. Self study and introspection में बहुत कुछ आ सकता है. Let me tell you that it's just not कि मेरे में कमी क्या है, कमी की बात नहीं करें. मेरे को आगे अगर बढ़ना है, so how am I moving forward in life? How am I moving forward in my spiritual journey? इसका I used to maintain a table. जब मेरे को I had to control my anger and my anger would come up like explode like a bomb. तो जब गुस्सा आता था तो बहुत भयंकर गुस्सा आता था. So I had to actually monitor कि when I am on my spiritual journey तो मेरी progress क्या हो रही है. So self study can also tell you like any emotion. Fear हो सकता है, anger हो सकता है, मैं anger पकड़ लूँ. आप जो भी emotion आपको regularly आते हैं आप उसको ले सकते हो. या एक particular habit है, उस habit से अगर पीछा छुड़ाना है तो उसके लिए भी आप स्वाध्याय करके ले सकते हो. 6 महीने पहले मैं एक दिन में कितनी बार गुस्सा करता था, तो कितनी बार गुस्सा करता था और हर बार कितनी देर के लिए गुस्सा करता था, और हर बार जब मैं गुस्सा करता था तो ये थॉट्स में तो होता था, वर्ड्स में होता था या एक्शन में होता था. समझ रहे हैं? या तो मैं सिर्फ सोच में गालियां दे रहा हूँ या मैं एक्चुअली मुंह से गालियां दे रहा हूँ या मैंने हाथ उठा दिया है. तो दिस आर 3 levels ऑफ एंगर, राइट. तो कितनी बार हो रहा है, कितने ड्यूरेशन के लिए हो रहा है और उस ड्यूरेशन के दौरान मैं क्या क्या कर रहा हूँ. दिस वाज हाउ आई एक्चुअली looked at my anger chart and slowly I could find out that पहले initially it was pathetic, I would tell you, क्योंकि कुछ इंसिडेंट होता था and I would be angry for maybe like 1 week. एक हफ्ते तक मेरा गुस्सा जाता नहीं था और उस एक हफ्ते में इतने इंसिडेंसेस और हो जाते थे कि आगे के हफ्तों की मेरी एडवांस बुकिंग हो जाती थी अपसेट रहने की. So I was permanently in a state of upset. The angry young man से angry old man भी हो गया, लेकिन it was still the same. So the anger was like getting hold of me and messing up everything. But then when I actually found out the reason for the anger and tried to get rid of that emotion, so this स्वाध्याय really helped me. तो मैं भाई पहले मैं कम से कम दिन में 10 बार गुस्सा होता था और कम से कम 1-1 घंटे के लिए गुस्सा होता था, यानी कि दिन के 10 घंटे तो गए ना. प्रोडक्टिविटी है ना उसमें कोई इफेक्टिवनेस है, बल्कि इमोशनली कंप्लीटली डिस्चार्ज और इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता था उसके बाद, बिकॉज देयर इज नो एनर्जी लेफ्ट, सारी एनर्जी निकल गई गुस्से में. राइट. सेम इज द सेम विद फियर आल्सो, सिमिलर इमोशन या हेट्रेड या जेलसी, जो मर्जी पकड़ लो आप. बट आई वाज रियली वरीड अबाउट एंगर, तो मैंने एंगर के ऊपर एनालिसिस किया. एंड बाय द वे, यू वर्क ऑन वन इमोशन, अदर इमोशंस आल्सो कम डाउन बिकॉज दे आर ऑल कनेक्टेड. इट मे लुक सरप्राइजिंग बट एक्चुअली इट इज दैट वे. कोई भी एक चीज पे आप कम करोगे थ्रू मे बी योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम या कुछ, तो आप देखो एक कम हो रहा है, बाकी भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं. पहले 10 इंसिडेंसेस होते थे, अब एक पे आ गया है. So I would request all of you, if you're not speaking, be on mute. Yes, thank you. तो पहले 10 इंसिडेंसेस होते थे, अब एक इंसिडेंट होता है. पहले 1 घंटा चलता था हर इंसिडेंट, अब 2 मिनट के लिए चलता है. और पहले थॉट्स, वर्ड, एक्शन तीनों में था, अभी सिर्फ थॉट में आता है. बिफोर आई even have to say something, it just goes back. तो उठता है और गिर जाता है जल्दी, कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है और वो कम हो जाता है. Now तो I for the last 3-4 years completely out of that anger syndrome.
So I am completely free from that emotion of anger and negativity. Now there is no scope for any negative emotion in my life. So I have completely erased it out. But yes, आता है, thought के level पे आता भी है, तो 5 सेकंड में distinguish करके उसको छोड़ सकते हैं. So you don't have to take any action on that. So what I'm trying to say is that Swadhyay is the way to improve your and get control of your inner world. अपने inner world को अगर आपको control करना है, Swadhyay is the best option. Yes. So everybody can hear me now? I mute you all. Yes, yes, we can hear you. Yeah, good. So सबको मैंने mute कर दिया. जिसको बोलना है unmute करके बोलेंगे और वापस mute पे चले जाएंगे. Yeah, that will be good for all. Okay, good. So I just shared one of my incidences so that you can connect with what is the importance of Swadhyay. So Swadhyay is not something like a textbook. वो थ्योरी की बात नहीं कर रहे. आपको अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है तो इंट्रोस्पेक्शन करना है. Look into your life, find out what is your boiling point, कौन सा है आपका वो प्रॉब्लम एरिया और क्या चीज आपको तंग कर रही है या क्या चीज आपको एक पावरफुल लाइफ या हैप्पी लाइफ जीने के लिए रोक रही है, उसको कम कैसे करना है, उसकी पूरी की पूरी अगर आप एक चार्ट बना के एनालाइज करेंगे, दैट इज स्वाध्याय. एंड द जर्नी ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ रहे हो तो वो आपको बताएगा कि कैसे आप आगे बढ़ रहे हो. ओके, सो दैट इज वेरी वेरी पावरफुल एक्चुअली. So how many of you have done Swadhyay? Anybody who wants to share some experience? Anybody who wants to share something? Very, very particular, specific, so that our guests can get an idea about what we are talking. Yes. I just have a question. You have a question? Okay, go ahead. Okay, so you said you were explaining from your self experience that you were dealing with anger. Now, if somebody is dealing with fear, somebody is dealing with guilt, are these also some things which can be handled by Swadhyay? Obviously, yes. How else can you do that? आपको इंट्रोस्पेक्शन तो करनी पड़ेगी ना, पर तरीका उसका रिवर्स करने का जो तरीका है वो इनसाइट्स होंगे या फिर आपको see any kind of suffering has the root in ignorance. Okay, you need to understand that. अगर आपकी लाइफ में सफरिंग है, मिजरी है, तो कुछ ना कुछ सत्य ऐसा है जो आपको अभी जिससे आप वाकिफ नहीं हो या जो आपसे छिपा हुआ है. इग्नोरेंस की वजह से आपके ये सारे ईगो के ड्रामे चल रहे हैं. So you have to understand a truth which is missing right now. So if you are in guilt का मतलब क्या है? You have done something in the past and you're not able to forgive yourself. That's all. So what you need to do? You need to forgive yourself. अगर guilt है तो ठीक है. तो be specific. अगर कोई specific emotion है जो आपकी लाइफ के लिए है, then let us have that, because वरना hypothetical हो जाएगा तो it will go on discussing without any point. So can we, मतलब like would it, मतलब just by forgiving yourself, do you think one can get free from the guilt just by forgiving oneself? Guilt अगर है आपका, अगर आपका guilt है, see there are two things. It may regret and resentment. You can have against yourself, you can have against others. ठीक है? तो अगर आप किसी और को ब्लेम कर रहे हैं अपने सुख और दुख के लिए, किसी और को रिस्पॉन्सिबल मानते हो, ऑब्वियसली यू विल एंड अप ब्लेमिंग देम. तो या तो आप किसी और को ब्लेम कर रहे हैं या आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं. खुद को ब्लेम कर रहे हैं तो गिल्ट में रहेंगे, औरों को ब्लेम कर रहे हैं तो आप कंप्लेंट वाले मोड में रहेंगे या रोने धोने वाले मोड में रहेंगे. उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी वजह से मैं बर्बाद हो गया. सो ऑल योर सफरिंग एंड मिजरी इज बेस्ड ऑन समबडी एल्स. और अगर खुद को कर रहे हैं तो यू विल बी ब्लेमिंग योरसेल्फ, you will be regretting for what you did in the past and you will be full of guilt. So guilt is nothing but blaming yourself. और blame से हटने का तरीका क्या है? माफ करो ना. That is the only way. You have to forgive yourself. Forgive मतलब what? Give up. And give up मतलब छोड़ो नहीं, give up. Give it to the divine, ना. Okay. भगवान से बोलो मैं इंसान हूँ, मेरे से गलती हो गई, सॉरी फॉर दैट, मेरे को माफ कर दो और मेरे पाप को, मुझे पाप से मुक्त कर दो. Talk to the divine. Talk to yourself. Forgive yourself. Why are you so harsh about with yourself? क्यों अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हो? सोचो, ये स्वाध्याय है. Why cannot I forgive myself? ऐसा क्या कर दिया मैंने? For which you cannot forgive yourself. That is why you are in guilt. Guilt है मतलब you can't forgive yourself. So forgive yourself. Love yourself. You don't love yourself. That's the problem.
If you love yourself, you can forgive yourself. So that is why affirmation, which I always say, I love, accept, forgive, and thank myself and all people in my life. How many of you know that? This is a favorite affirmation which I give to all my healies. Yeah. And you do that 8 times in the morning after getting up and 8 times before going to sleep. It has to go into your subconscious mind. आपके हर सेल में, बॉडी के हर सेल में, हर टिश्यू में, हर ऑर्गन सिस्टम में ये वाइब्रेशन जानी चाहिए. कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में ये वाइब्रेशन जानी चाहिए. I love, accept, forgive, and thank myself and all people in my life. You will be free from guilt. You will be free from blame. You will be free from anger. Right? Okay. Insights. Anybody who wants to share from their life? स्वाध्याय के ऊपर बात कर रहे हैं. Yes, Swat, go ahead. हाँ, तो मेरे साथ में काफी सोशल एंजाइटी का प्रॉब्लम था, स्पेशली जब मैं अकेला चलता. जैसे कॉलेज में जब मैं आया, ठीक है, अब मैं अकेले कॉलेज के गेट से मैं क्लास तक वॉक कर रहा हूँ या कहीं अकेला चल रहा हूँ सड़क पे, तो मेरे साथ में रहता था कि कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में चैटर चलती रहती थी कि यार लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में. ठीक है, जिनका कोई लेना देना भी नहीं है, आसपास चल रहे हैं, देख रहे हैं. ठीक है, अगर वो मेरे पास डायरेक्टली नहीं भी देख रहा, लाइक ये यहाँ पे कौन है, ये यहाँ पे कौन है, ये मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे भाई ठीक है, मतलब कुछ भी, ठीक है, मेरा बिहेवियर कैसा है, बहुत सारी चीजें और कॉन्स्टेंटली चलती रहती थी. ठीक है, तो अब मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया. मैंने कहा ऐसे तो नहीं चल सकता बार बार, है ना, करते करते ऐसे थोड़ी है. तो मैंने 2-3 चीजें पॉइंट सोचे. तो मुझे लगा कि एक तो इसका रीजन क्या था. इसका रीजन आया कि स्कूल के अंदर लाइक बच्चों का, मतलब जब मैं छोटा था बड़े मजाक उड़ाना एंड ऑल दैट. ठीक है, कि चश्मा पहनता है एंड ऑल दैट, पता नहीं क्या क्या. ठीक है, तो ऐसी बहुत सारे पॉइंट्स थे. तो लाइक कि वहीं से मेरी एक एंजाइटी क्रिएट होना शुरू हो गई कि लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं. बिकॉज उस टाइम पे लोग बोलते थे, अब वो मजाक उड़ाने के लिए, बोलने के लिए. तो एक पॉइंट आ गया कि यार लोग जज करते हैं. ठीक है, अब वो एंजाइटी इतनी क्रिएट बढ़ गई कि जो लोग नहीं भी जानते, ऐसे ही चल रहे हैं, अब वो भी क्या सोच रहे हैं ये भी दिमाग में आने लग गया. ठीक है, अब मैंने नोटिस किया कि यार ये आवाज जाती कब है मेरे मन से, ये थॉट प्रोसेस कब डिसिपेट हो जाता है. अब मैंने कहा जब जिन भी चीजों में मेरा मन लगता है, या मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में हूँ, किसी अच्छे सर्कल में हूँ, तो जब मेरा ध्यान उनकी तरफ है या मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो फिर उस टाइम नहीं है. या मैं क्लास में बैठा हूँ तो नहीं है, बिकॉज क्लासमेट को मैं जानता हूँ, एक नॉर्मल नॉन सोशल एनवायरनमेंट है, पढ़ रहा हूँ, तो मेरा ध्यान नहीं है उस पर. तो मैंने वही नोटिस करना शुरू किया बार बार कि हाँ कब ये आ रहा है, कब ये जा रहा है. फिर मैंने कहा इसका पॉइंट ही क्या है तेरे को भी. फिर मैंने अंदर से अपने अंदर कन्वर्सेशन करना शुरू किया कि इज देयर अ पॉइंट, कि अगर वो तेरे बारे में जो सोच रहे थे कुछ पॉइंट है इस चीज का. तो फिर बार बार अपने आप को, जब मैं उन सिचुएशन में होता था, अकेला होता था, तो अपने आप को यही डायलॉग मैंने बोलना शुरू किया, बजाय कि उसके धीरे धीरे वो डिसिपेट होना शुरू हो गया. तो उसके बाद में एक इफेक्ट काफी खत्म हो गया. तो धीरे धीरे करके वो चला गया और अब मैं नहीं सोचता. Absolutely perfect. That is the way you do that. रैशनलाइजेशन किया. Good job. That is what is self introspection is. That is what is Svadhyay. You look at inside world, see what is troubling you, और बाहर की दुनिया को चेंज नहीं करना. बाहर जाके लोगों को नहीं बोलना तुम मेरे बारे में सोच रहे हो कुछ, तुम मेरे बारे में कुछ बोल रहे हो, नहीं बोलना. ऐसे नहीं, बाहर की दुनिया तो बोलेगी, बोलने दो उनको. You have to become, आपको बोलना है. जो संजीव की फेवरेट लाइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. सिंपल, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बोलने दो ना उनको. कुछ तो लोग बोलेंगे ना, बोलने दो उनको. That's how you need to look at it. Correct? ये नहीं बोलेंगे तो कुछ और बोलेंगे. कोई बोलेंगे बेकार लगता है, कोई बोलता है हीरो लगता है. दोनों ही आपको हजम नहीं होगा. एक लगेगा कि नीचा दिखा रहा है, दूसरा बोलता है झूठ बोल रहा है. अगर कोई बोले आप बहुत स्मार्ट लग रहे, बहुत हीरो लगता है, मेरे को लगा झूठ बोल रहा है, मजाक उड़ा रहा है. तो कोई सच्ची में कोई तारीफ करते वो भी एक्सेप्ट नहीं करते थे, मजाक कर रहा हो. So there are many people who can't accept appreciation because they think that I'm not worth that appreciation. और appreciation नहीं मिली तो रोते हैं कि appreciation. So you need to understand every soul needs approval, appreciation, and ये चाहिए soul को. Appreciation चाहिए, approval चाहिए. तो जब मिलता है, नहीं मिलता है तो रोते हैं, जब मिल जाता है तो विश्वास नहीं होता. That's the problem. The same thing with love also. Everybody wants to be loved, but then when they get the love, they start doubting it. There are many people. अगर आप डाउट करने लग जाओगे कि वाकई में does she love me or is she just playing around? थॉट आता है तो डाउट करने लग जाते हो.
तो मिल रहा होता है तो डाउट करते हो, नहीं मिल रहा होता तो रोते हैं। तो जो देवदास बनना होता है वो देवदास बन के ही रहेगा, nobody can stop him, correct? So you need to understand, ये इनसाइड स्टोरी है। तो आपको अपनी इनसाइड स्टोरी को स्टडी करके जो गंध है, जो वायरस है, वायरस को आपने ही हटाना है, बाकी सब ठीक है। So good job Parth. That is the right way to do the self introspection, right? That is exactly what is Swadhyay. Great, good job. Anybody else who wants to share? Mera bhi, yeah, I have an experience. Yes, go ahead. I always wanted to be perfect in every field. Whether I am a mother, whether I am a daughter, whether I am a sister, whether I am a designer, whosoever I am, I always wanted to be perfect. And I am not perfect, though I'm not perfect. तो उस चीज ने मुझे बहुत डिप्लीट किया लाइफ में, बहुत ज्यादा। और मैंने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे जस्ट बिकॉज कि मैं परफेक्ट नहीं हो पा रही थी। देन आई टुक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ। मैं अपने साथ बैठी, मैंने कहा मेरे से नहीं हो रहा ये चीज, एक चीज तो आई थिंक आई शुड लीव इट ऑन गॉड, मे बी मेरे को इसके पीछे नहीं भागना अब। Okay, good. Yeah. So can I say something on this? Yeah, sure. You're through? Yeah. So first of all, let me tell you there is a good news and there is a bad news. Okay. Yeah. दोनों चीजें हैं। तो सबसे पहले human beings can never be perfect. That is the bad news. Okay. Human beings can never be perfect. We are always WIP, I say. Work in progress. Okay. You can always move towards perfection. Perfect आप कभी भी नहीं होंगे। Roles are perfect. Try to understand the role that you are playing. That is a perfection. Perfection role में होता है। Actor can try very close to being perfect, but he can never be perfect. Yeah. Even the Yeah. most perfectionist जो है वो हर 15 साल में आजकल कुछ कर रहा है। ठीक है? जी। Yeah. We all know what we are talking of, right? Amir Khan, Yeah. the perfectionist Yes. of Bollywood, is also Yeah. perfect in some aspect, imperfect in many others. So nobody is perfect. Perfection आ ही नहीं सकती है क्योंकि वो 100% पे नहीं पहुंचोगे आप। तो celebrate your imperfections, enjoy Yeah. your imperfections, and you are unique. Find out your strength and express your strength. Why do you want to be perfect? Enjoy your imperfections because you are always WIP, work in progress. Remember that. तो सारा प्रेशर हट गया, परफेक्ट होना ही नहीं है, बन ही नहीं सकते परफेक्ट। अब कोशिश करो, like that. जी। Right? So that will give you a lot of freedom in your life. Yeah. परफेक्शन की जरूरत नहीं है, जॉयफुल होने की जरूरत है, हैप्पी रहने की जरूरत है, लवफुल होने की जरूरत है। परफेक्ट बनाने के लिए क्या किसने कह दी? परफेक्शन में हमेशा एंगर आएगा। सी परफेक्शन छोड़ दो। इफ यू आर गुड इन सम फील्ड एंड समबडी एल्स इज नॉट एज गुड एज यू विल फील वेरी एंग्री एट हिम और हर। ये क्या समझ में नहीं आती है क्या? इतना सा काम नहीं होता है। नो, समबडी इज लोअर देन यू, व्हाट विल यू फील? वेरी एंग्री। जूनियर है कोई, काम करना नहीं आता या काम नहीं कर पा रहा है उस लेवल पे जो आप करते हो, तो बहुत गुस्सा आता है कि क्या बेवकूफ है क्या, समझ में नहीं आती बात इसे। सो परफेक्शन के बहुत सारे और नेगेटिव हैं। सो डोंट बी परफेक्ट, सेलिब्रेट योर इम्परफेक्शन एंड एंजॉय पीपल इन योर लाइफ, एंजॉय विद पीपल इन योर लाइफ। ओके, ग्रेट। एनीबॉडी एल्स वांट्स टू शेयर समथिंग? कुछ अगर कुछ अंदर घंटियां बज रही हैं, कुछ इनसाइट्स आ रही हैं तो यू कैन शेयर। यस, गो अहेड अमित जी। रेखा जी आप। हाँ रेखा जी बताइए। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई मुझसे कहता है कि ये काम अच्छी तरह नहीं किया, तो आई फील दैट वे कि हाँ मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ। मतलब अंदर से एक फीलिंग आती है कि हाँ मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ और मैं ये काम इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकती हूँ। ओके, तो दैट्स इट। अभी आपको ये समझ में आ गया कि आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, तो आपको कुछ फ्रीडम मिली उस एरिया में? हाँ, उस एरिया से फ्रीडम मिली कि मुझे वो बुरा नहीं लगता, कि आई फील हाँ आई एम हैप्पी फ्रॉम दिस सिचुएशन, कि मुझे अच्छा लगता है कि अब मुझे कोई कहे तो मुझे बुरा नहीं लगता। नंबर 1, बुरा नहीं लगना चाहिए। दूसरी चीज, अगर इम्प्रूव कर सको तो डेफिनेटली यू कैन डेफिनेटली लर्न फ्रॉम दैट एंड ओके, आपने बता दिया ये प्रॉब्लम है, लेट मी सी हाउ बेस्ट आई कैन डू। नाउ यू विल नॉट फील बैड अबाउट इट, यू विल नॉट बीट योरसेल्फ अबाउट इट। आप अपने आप की गिल्ट में नहीं जाओगे, अपने आप को पीटना शुरू नहीं करोगे कि हाय बेवकूफ, तेरे को ये नहीं आता, वैसे नहीं बातें करोगे। अब आप बोलोगे ठीक है, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, फाइन, नहीं आता, सीख लेंगे, जितना कर सकता हूँ बेटर और अच्छा बेटर करूंगा। हाँ, दैट ओनली, so that will give you a lot of freedom actually, correct? Great, good Rekha ji, that's a good insight. Okay, who else wants to share?
And I would request Sanjeev and Amit ji to pitch in whenever they feel appropriate, huh? Because I know that you have got gems of wisdom. So whenever you think it is appropriate to share, please take your time so that others can. मैं पार्थ की बात पे एक और चीज बोलना चाह रहा था ऑन द टॉप ऑफ इट. सो आई नो मैंने शायद ये पहले भी यूज किया है कि मतलब जो भी ये फील करते थे कि लोग देख रहे हैं, और जब हमने बात करी उस बारे में कि हाउ टू नॉट लेट गेट इफेक्टेड बाय द अदर्स, तो मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ कि द ट्रिक इज टू केयर अबाउट एवरीबडी विदाउट केयरिंग व्हाट दे थिंक. Yeah. Very good, very Care good. about everybody without caring what they think. Absolutely. तो they are वो bullying. क्या सोच रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. बट यू केयर फॉर देम, यू लव देम एंड दे लव यू. दैट्स इम्पोर्टेंट. सोल टू सोल रिलेशनशिप जरूरी है. और सब लोग एक जैसे सोचने लग गए तो दो लोगों की जरूरत क्या है? मैं और आप बिल्कुल एक जैसे सोचने लगे हैं तो one of us is not required. We are unique in our thinking. We are unique in our behavior. That's why we are two. तभी दो बनाए हैं ना भगवान, वरना एक ही डबल रोल में क्यों बनाता किसी को? सिर्फ पिक्चरों में होता है. और मैं रिक्वेस्ट करूँ तो इस चीज को ना और बहुत डीपली इसको इम्पैक्टफुली मंथन करें अपने अंदर ही सभी के सभी लोग, कि हम लोग सोचते हैं यार वी नीड टू केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक एंड थिंक, बट आई थिंक ये बहुत फाइन डिफरेंस है. ये अगर समझ में आ जाता है तो लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाती है. केयर करनी है पर ये नहीं सोचना कि अपना अगले बारे में क्या सोच रहा है, और बिल्कुल मतलब गो टू हेल टाइप्स. Absolutely. केयर करते हैं. There's a famous quote from Sandeep Maheshwari. He often says that क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग ही लाइफ का ये है, क्या कहेंगे लोग. So forget about them. वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही. You see what you need to do. तो अपना स्वाध्याय करो और आगे बढ़ो. ये yes संजीव, good. What you shared is a lovely thing, and which I was thinking on what Parth said and Gunjan ji said. दोनों की बातों को देखकर मैं मंथन कर रहा था अभी अपने आप से कि जैसे पार्थ ने बोला, गुंजन जी ने भी शेयर करना था, मैंने ना लाइफ में दुनिया को बहुत चेंज करने की कोशिश करी है. मतलब इस हद तक चेंज करी है, वर्ड्स, थॉट्स एंड एक्शन में सबसे ज्यादा चेंज करने की कोशिश करी है. मतलब एक्शन का मतलब लोगों को मैंने इतना पीटा है, इतना मारा है, जिसको गलती कर कैसे सकता है. मैं बता रहा हूँ, पार्थ आपने बोला ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने दुनिया को बेइंतहा चेंज करने की कोशिश करी. मजा एक दिन समझ में ये आया, जिसको चेंज करने की कोशिश करी ना तो वो बदले ना मैं बदला. दोनों में से कोई नहीं बदला, दोनों वहीं के वहीं थे. और अल्टीमेटली आई रियलाइज्ड विद वन गुड एग्जांपल. जब मैं बाइक चलाया करता था, जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो एक दिन मैं रात को ऑफिस से लेट जा रहा था और एक गाड़ी वाले ने अचानक टर्न मारा, मेरी बाइक को टक्कर मारी, मैं गिर गया, मेरे पैर की हड्डी टूट गई. आई वाज ऑन प्लास्टर फॉर मोर देन अ मंथ. ऑफिस जाना किसी के सपोर्ट से लेने, तब मैंने जाना आना शुरू करा. और मुझे घर वालों ने बहुत बोला, कईयों ने जिसको पता था, अब समझ में आया टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी नहीं चलाते हैं, बाइक ढंग से चलाते हैं, साइड में चलाते हैं. किसी को मालूम ही नहीं मैं कहाँ चला रहा था, लेकिन ज्ञान देने वाले बहुत लोग आ गए थे. एंड शशि, मैंने बहुत सुना और मैंने अपने मन में सोचा अब मैं बाइक ढंग से चलाऊंगा. जब मैं ठीक हो गया, जब मेरे को लगा बाइक चलाने की पोजीशन में, मैंने उसका वाकई में ढंग से बाइक चलाई, बहुत तमीज से चलाई, मैक्सिमम 1 हफ्ते. वापस मेरी बाइक चलाने का तरीका वही हो गया था, वापस टेढ़ा मेढ़ा चला रहा था, वापस मैं जैसे चलाता था वो चलाया. एंड आई रियलाइज यार, मैं इतना बड़ा झटका खाने के बाद पैर की हड्डी टूट गई, मैं नहीं सुधरा, मैं किसको सुधार सकता हूँ यार. Now this is where I came to this conclusion कि बस ना, जिसको सुधरना है, जिसको समझना है, मैं एक दिन खुद मुझे समझ में आया कि यार तमीज से चलानी चाहिए, उस दिन मैं सुधरा. उसके पहले मैं नहीं सुधरा और मैंने उसके बाद जेन्युइनली दूसरों को सुधारना भी बिल्कुल छोड़ दिया. मैं अपने आप को सुधार लूं. और मजे की बात, उसके बाद से मेरे आसपास के लोग तमीज में ही गाड़ी चलाने वाले मिले, मुझे बदतमीज कोई दिखा ही नहीं. मैं इतना ही कह सकता हूँ आपको. Perfect, great share. So that is icing on the
केक जो बोलते हैं कि वेरी वेरी प्रैक्टिकल, कि लोगों को सुधारने से अच्छा है यू एक्सेप्ट इफ यू थिंक दैट दे आर नॉट गोइंग टू चेंज, आप अपने इनसाइड वर्ल्ड को चेंज कर लीजिए एंड दैट विल क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड फॉर यू आउटसाइड। वो बाहर की दुनिया आपके अंदर की दुनिया से ही निकलती है। That is what is actually, that is what is law of attraction. If you have understood what is law of attraction, your inside world is attracting the world outside. तो आपको inside world को ही change करना है, बाहर की world को कुछ भी नहीं करना है, accept it, and then do whatever little adjustment has to be done. Yes. Can I ask Parth and Gunjan ji especially जो बोल रहे थे, does that make some sense जो आप बोल रहे थे कि बाहर वालों को तो वो तो डिस्टर्ब करते हैं, does that make sense to you? Just asking from Parth, can you share something? इसमें मैं एक स्टोरी शेयर कर सकता हूँ कि जब मैंने धीरे धीरे कुछ के चेंज लाना शुरू किया तो मेरे आउटसाइड वर्ल्ड में क्या चेंज आया और इनसाइड वर्ल्ड में मैंने कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया। तो 2018 में मेरा एक्सीडेंट हो गया स्कूटी से, ठीक है, बहुत बुरा वाला, मतलब सब हाथ पैर सब टूट गए। इससे पहले कुछ नहीं हुआ था, सारा एक्सपीरियंस हो गया, हड्डी टूटने का, डिसलोकेट होने का, सब हो गया, ठीक है। तो उसके बाद में जब मैं हॉस्पिटल से घर आ गया, सब काम हो गए, तो बड़े सारे लोग आए देखने के लिए। अब रिश्तेदार आए, दोस्त आए, सबने मेरे को एक ही बात बोली, बिना ये जाने कि मैं स्कूटी कैसी चलाता हूँ, हेलमेट पहना है, कैसे क्या करता हूँ, जो नहीं जानते दूर दूर के लोग, सबने बोला पार्थ कभी स्कूटी मत चलाइएगा आप जिंदगी में, पार्थ कभी स्कूटी मत चलाइए। एक्सीडेंट हो गया, मतलब मेरी गलती थी या जो भी था, ठीक है। लाइक कि मैंने अपने मन में क्या सोचा, मैं सोच सकता था यार क्या मतलब ये तो नहीं जानते, और मैं उनको बार बार एक्सप्लेन करूँ कि मैं ऐसे चला रहा था, वो कर रहा था। मैंने कहा छोड़ो, मैंने किस चीज पे फोकस किया, मैंने कहा कि यार इतने सारे लोग तेरी केयर करते हैं और सब लोग मिलने के लिए आए, तो लोग कई टाइम दोनों से नहीं मिले थे, वो सारे लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं, ऑल दैट। जहाँ तक स्कूटी की बात है तो मुझे अपने इंटरनली पता है कि मैं स्कूटी कैसे चलाता हूँ, मैं सीखा जैसे भी था, अब सिचुएशन होते सर्कमस्टेंस होते हो जाता है, ठीक है। और मुझे कॉन्फिडेंस था और मेरे पेरेंट्स को पता था या कॉन्फिडेंस था उनको कि हाँ ठीक है हमें पता है, ठीक है, और कैसे चलाते गया। तो मेरे पापा ने बोला ठीक है जब ठीक हो जाए तेरा हाथ पाथ तो चला लियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उनको रिश्ता जो आ रहे थे उन लोगों को किसी को कुछ नहीं बोला, कोई लंबे चौड़े एक्सप्लेनेशन नहीं या अपने अंदर कन्वर्सेशन नहीं कि क्या सोचते हैं, ऑल दैट। लाइक ठीक है मिलने आ रहे हैं, बड़े अच्छा है, तो सबसे अच्छे से बात करी, मैंने उस पार्ट को अप्रिशिएट किया और उसकी पर फोकस डाला, ठीक है। तो मेन चीज यही थी। गुड। हाँ बस एक लाइन मैंने उनको जरूर कह दी कुछ लोगों को कि हाँ लाइक अगर आप बाथरूम में स्लिप हो जाओ तो आप नाना थोड़ी छोड़ दीजिए। Good, very good point. Couldn't get that. Very nice. What was that part? बाथरूम में मैंने फिसल कहा अगर जाओगे आप तो बाथरूम नहाना में छोड़ना स्लिप छोड़ हो जाओ दोगे। तो नाना थोड़ी छोड़ देंगे। Okay, good path, good lessons and good swadhyay. Okay. So Gunjan ji, is जी it मेरा clear? You want to share something? यस Yeah. मेरा भी काफी क्लियरेंसेस आई हैं मुझे लाइफ में। लाइक आफ्टर माय डिवोर्स एवरीबडी गॉट स्केयर्ड हाउ इंडियन पेरेंट्स आर, 2 बच्चे हैं कैसे करेगी, तो बहुत सिक्योर्ड मुझे रखते थे। हालांकि मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं बहुत बर्डन रिलेशनशिप से बाहर आई थी, तो बट पेरेंट्स ने बेचारी बना दिया और मैं बेचारी बनना नहीं चाहती थी बिकॉज I was very strong at that time. बट करते करते एक ऐसा टाइम आया कि मुझे लगता था कि प्लीज आप मत रो, जब मैं नहीं रो रही हूँ तो आप क्यों रो रहे हो। एंड आई प्रूव्ड ऑल्सो माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ देम, बट ओवर सिक्योरिटी भी सामने वाले की कई बारी हमारा दम घोट देती है। बट फिर मेरे को लगा कि मैं इनको चेंज नहीं कर सकती, दे आर लाइक दैट ओनली, दे आर पेरेंट्स, मे बी आई एम ऑल्सो अ पेरेंट, सो आई नो हाउ आई फील फॉर माई डॉटर। I am a new generation, but they are old. So I left them. If you don't want to change, fine. I am like that only. I'm very happy. Perfect. Yeah. Perfect understanding. Yeah. Only word that you need to change is not that I left them. I accepted them. Yes. Accepted yes. them is the right word, right? Yes. You leave them means No, not leave them physically. They are sitting in the next room.
तो एक्सेप्टेंस इज द राइट थिंग। सो एक्सेप्ट कर Yes. लोगे कोई चीज तो फिर वो बॉदर नहीं करेगी, जब तक आप जी उसको रेजिस्ट करोगे वो प्रॉब्लम करेगा। जी करेक्ट, गुड जॉब, जी गुड शेयरिंग गुंजन जी, एंड गुड शेयरिंग पार्थ। Okay, we come to the last point, though we are just touching the time limit. Last point, Ishwar Pranidhana, surrender to the divine. Anybody has any kind of doubts? How to surrender to the divine? क्या होगा इससे? मैं सब कुछ मैं कर रहा हूँ, ऐसी कोई फीलिंग है किसी को कि है कोई? नहीं। Surrender to divine No. clear है? Surrender to divine basically means in one line, whatever is happening for the good, and divine is deciding that. Results are in his hands. Karam आपके हाथ में है. So do the actions and leave the results to the divine. That is the perfect way of understanding Ishwar Pranidhana. Surrender to the divine. Don't surrender the actions to the divine, by the way. Actions अपने पास रखो. Results divine को देना है. I hope I am making things clear. कोई होते कर्म भी छोड़ दिए जी, मैं तो बैठा हूँ, अब तो भगवान देखेंगे। तो भगवान कुछ नहीं देखेंगे, बैठोगे तो बैठे ही रहोगे। तो कर्म करना है, रिजल्ट्स डिवाइन पे छोड़ना है, क्योंकि रिजल्ट्स पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो आउटसाइड वर्ल्ड का है। डू योर बेस्ट एंड लीव द रिजल्ट्स टू द डिवाइन। दैट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ईश्वर प्रणिधाना। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, एनी शेयरिंग? तो बेसिकली ये थोड़ा एक्सपेक्टेशन, one at a time. Yes. तो वो वाला है whatever. Yeah, sorry. Good. Yeah, Parth, carry on. I think Renu ji wanted to say something. Renu ji. Hold on. One at a time. Everybody will get a chance. Sanjeev, go ahead. So I'm saying कि एक अमित जी के बड़े favorite word है WHHFG. Whatever happens for great. And that's like so awesome. तो वो बड़ा मजेदार चीजें हैं। और जैसा आपने बोला ना कि खाली बैठे हो तो भगवान कुछ नहीं देखेगा, मैं इसको बोलता हूँ भगवान देखेगा तब भी, आपको खाली बैठे हुए देखेगा। Correct, absolutely right. Okay, good. Who else wants to share? Parth, go ahead. हाँ, तो मैं इसमें पॉइंट कह सकता हूँ कि हम लोग जैसे एक्सपेक्ट करते हैं तो वो बहुत एक्सपेक्टेशंस को बहुत स्पेसिफिक ना रखा जाए कि हाँ ये मैंने ये काम करा है तो यही होगा एंड ऑल दैट। और अगर आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा अलग रिजल्ट आता है या ऊपर नीचे कुछ होता है तो उसके बारे में आप सोच के या मतलब उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं अपने एक्शंस को उस हिसाब से। तो बेसिकली एक्शंस को जज ना, मतलब रिजल्ट्स जो आ रहे हैं उनको जज करने के बजाय या अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज्यादा हाई करने के बजाय अपने बिहेवियर को उस हिसाब से चेंज करते रहें अपने और अपने एक्शंस में उसको लेके। तो ये वाली चीज Results are only a reality check. Results are only a reality check of your actions. So if it is something is missing the target, you have to improvise so that you reach the target again. Simple है. Try again. Change करो, corrective action लो, change again. Right? Yes, Renu ji, go ahead. रेणु जी। हाँ जी सर। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ सर, सरेंडर टू गॉड वाली जब बात की ना सर, तो मैंने एक बार पहले भी शेयर किया था। पहले मुझे लगता था कि जैसे मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, तो उस टाइम पे जितना भी करती थी वो कम लगता था। तो सर संजीव सर ने भी एक बार मुझे बोला कि आप क्यों माई बाप बनने की कोशिश कर रहे हो, आप कोई माई बाप नहीं हो। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि हाँ, जैसे जैसे चीजें मैंने छोड़नी स्टार्ट की तो मैं मतलब रिलैक्स हो गई। पहले जितना कोशिश कर रही थी और परेशान हो रही थी। और अभी जैसे आपने बोला कि एक्शन जरूर करने हैं सरेंडर टू गॉड, उसमें एक्शन नहीं भी करने तो भी आपको भगवान देख रहा होता है। अभी मैं स्लिप करके गिरी, मैंने सर को बताया, संजीव सर को, मैं स्लिप करके गिरी, मेरा राइट नी का लिगामेंट टूट गया। तो उस टाइम कुछ नहीं समझ में आ रहा था। साथ ही साथ ऑफिस ओपन हो गए, रेगुलर हो गए, वो अल्टरनेट वाला खत्म हो गया। तो इसकी वजह से मैंने ऑटो लगा लिया है। अभी मॉर्निंग वाला भी वो घर के सामने आता है और शाम वाला भी। नहीं तो मैं वो मेट्रो की लंबी लाइनें आजकल लगी हुई है, पौना घंटा बाहर। तो ये इस लिगामेंट की वजह से, एक तो मैं वो धूप में नहीं जल रही हूँ वहाँ ऑटो उसके वहां पे मेट्रो की वजह से, और दूसरा अब तो एक मजाक की तरह हो गया, सुबह जब ऑटो वाला घर के सामने आता तो बच्चे बोलते मम्मा आपका ड्राइवर आ गया। और उधर ऑफिस में मैं एक्चुअली सिक्योरिटी देखती हूँ, तो हमारे जो कैमराज है ना उसके भी नीचे जब वो आके खड़ा होता है तो मेरे सेक्शन से भी आते, मैम आपका वो आ गया ड्राइवर।
तो एक वो चीज को भी मैं एंजॉय कर रही हूँ, जो ड्राइवर वाले के आपका ड्राइवर आ गया, बेशक ऑटो वाला ही लगा हो रखा है सुबह शाम के लिए, लेकिन मैं लिगामेंट का बता रही हूँ कि ये मेरे लिए है कि मैं ये सब इससे कोरोना के टाइम में बची हुई हूँ मेट्रो से जाने में। तो perfect, perfect, great, great, रेणु जी। तो W जो अमित जी का फेवरेट डायलॉग है, whatever happens happens for good, तो परफेक्ट है। तो टांग भी अगर टूट गई तो उसमें भी एंजॉय, जॉय ढूंढ रहे हैं, हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, फन ढूंढ रहे हैं, दैट इज लाइफ। नथिंग इन लाइफ इज सो सीरियस दैट यू हैव टू कीप क्राइंग ना। लर्न फ्रॉम इट, एक्सपीरियंस करो, लर्न फ्रॉम इट, मूव हेड। किसी के साथ अटकना नहीं है, किसी के साथ अटैच नहीं होना, अच्छी आदतें भी नहीं और बुरी आदतें भी नहीं। यू नो, आई वाज जस्ट रीडिंग समथिंग, आई जस्ट शेयर दैट एज ए लास्ट लाइन, कि जब हम बोलते हैं कि जब कोई अगर हमारे ऊपर कोई कीचड़ गिर जाता है या गंदगी हो जाती है तो हम साबुन से धोते हैं उसे, और उसके बाद साबुन को भी धोना पड़ता है पानी डाल के, करेक्ट? So first you have to apply soap to remove the dirt and then you have to put water to remove the soap also. So similarly जब कोई बुरी आदत होती है तो उसको हटाने के लिए, जैसे हम बोलते हैं तमोगुण को हटाने के लिए सतोगुण जरूरी है, सतोगुण के हैबिट्स जरूरी हैं, लेकिन बाद में सतोगुण को भी हटाना है हमको, बिकॉज सो दैट वी कैन कंप्लीटली गेट फ्री। तो फुल फ्रीडम इज व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम ऑल हैबिट्स। First get rid of the bad habits, then get rid of the good habits, so that you are not bound by anything, and then enjoy every second of your life. That is perfect living. So yeah, सुबह की insight है, मैंने कहा I'll just share that with you. So with this we come to the end of the session. Anybody wants to share last sharing? Anybody? Yes, Kirti ji. Kirti ji, you want to share something? Anji, I wanted to ask something. Yeah. Am I audible? Yeah, good. I wanted to ask कि कभी कभी हम माँ बाप बनने की कोशिश नहीं करते, पर दूसरे कहते हैं आप ही को सब कुछ करना है, तब क्या करें? Okay, so in that case, give us a practical situation. Office में है, घर में है, क्या है, and then what would you love to do? The situation is आप घर में हैं और क्योंकि सारे काम हो रहे हैं एंड करने हैं, तो if someone expects कि नहीं हर काम में आपको प्रेजेंट होना जरूरी है। So what is your take on that? My take is जब 4 जने हैं तो उसमें से 3 जने काम करे तो चौथे की क्या जरूरत है? So communicate that, do a division of work कर लो, mutually बैठ के communication करना है इसमें। The people who love you, right? Family means I'm considering that there are people who love you and you love them. So it's only a question of, if the commitment is there, love is there, then it's only a question of a clear communication. Communicate it and say whatever you want to do, and then accordingly take a call, right? Ultimately, see, अगर कोई बोलता है या नहीं बोलता है, जो भी आप कर रहे हो, that is your decision. You can't say they made me do it. No, they didn't make you do it. They said something and then you decided to do it. So own up your responsibility for the decisions. That's what I would say. बाकी आपकी choice है, करना है तो करो, नहीं करना मत करो, but be happy and joyful. That is a primary condition. First be happy and joyful, and then consider it your decision, and then do whether you want to do it or not. That is your choice. Yes, Sanjeev, you were saying something. Yes. Line in for Kirti कि वो आपको माई बाप बना रहे हैं तब तक जब तक आप माई बाप बनने जा रहे हो। आपको माई बाप बनने में मजा नहीं आ रहा है तो आपको माई बाप नहीं बना पाएंगे। सो ऑल दी पावर, स्वाध्याय, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आपको मजा आ रहा है इसलिए जब जब आपको बना रहे हैं आप जा रहे हो। अगर आपको लिटरली अभी शशि ने क्या बोला नहीं आ रहा है तो you don't accept माई बाप and you तो there is no fight। अगर आप फाइट बोल रहे हो तो अब देखिए अंदर का सोच वाला काम आ गया है यहाँ पर। अपने इंटरनल वर्ड्स को चेंज करिए कि मैं फाइट कर रही हूँ। शशि जी ने इतना अच्छी तरह समझाया, इसमें प्रॉपर सोच वाली बात आ गई। अब इट्स द वर्ड सेज यू हैव टू क्लीन योरसेल्फ, दैट्स व्हाट आई वुड से। इस पूरे नियम के अंदर सारी चीजें आती है जो शशि ने समझाया है। इट्स ऑल इंटरनल नाउ एंड सी एंड यू विल गेट द आंसर। Absolutely perfect, Sanjeev. Great. Shashi, Kiran has raised the hand. Yes, go ahead, Kiran ji. Is on mute. आप mute पे हो आप। Hello. Yeah, go ahead.
हाँ, मैं आप सबको हेलो बोलना चाहती हूँ। Welcome, और Kiran. In fact, she is my guest. I had a word with her a couple of days back, and I invited her. So thank you, Kiran, for being here. Go ahead. सर कुछ दिनों पहले इनके मैं ऑफिस का अपना बताना चाहती हूँ। मेरा जो नॉर्मली टॉक है वो बहुत सॉफ्ट है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है या फिर कुछ होता है, एम्प्लॉयज ने अगर मैंने 8 दिन से बोला है लेकिन उन्होंने किया नहीं, आज मुझे सबमिशन करना है, फिर भी वो बोलते हैं कि मैम नहीं, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा। ऐसे टाइम पे मैं इनके थोड़ा सा इनके हार्ड वर्ड्स ऐसे यूज करती हूँ कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें लेटर दे दूंगी या फिर मैं ये कर दूंगी। तो मेरी मॉम बोल रही है कि तुम्हारा ना बहुत अच्छा पॉइंट है कि तुम हार्ड हो, लेकिन तुम्हारा बहुत बुरा भी पॉइंट है कि तुम हार्ड हो। मैंने बोला ऐसे कैसे? तो बोले तुम जब बात कर रही थी, इनके उन्होंने मुझे आज ही सुबह बोला ऐसा। मैंने अपने इनके नीचे वाले जो भी काम करते हैं उनसे बोला कि 8 दिन से बोल रही थी कि प्लीज आप मुझे वो डॉक्यूमेंट ला के दो। तो बोल के नहीं मैम मैं शाम को दे दूंगा। नहीं, मुझे आज सबमिट करना है, अगर नहीं दिया तो मैं ऊपर आपकी कंप्लेंट कर दूंगी और आपको एक लेटर आ जाएगा, तो फिर आप सोच लो क्या है। तो मेरी मॉम बोली कि आप ना ऐसे बातें मत किया करो और एक हार्श लैंग्वेज यूज करते। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि मैंने तो काम तो मुझे करवाना ही है, प्यार से बोला अंकल जी करवा दो, अंकल जी करवा दो। इनके बड़े हैं तो प्यार से ही बोलना पड़ेगा ना कि आप करवा दो। उन्होंने 8 दिन से कुछ नहीं किया और आज सडनली जब बोला तो फिर इनकी सिर्फ थोड़े से हार्श वर्ड यूज किए और विद इन हाफ आवर मेरा काम हो गया, मेरा सबमिशन भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि ऐसे सिचुएशन में क्या करें, क्योंकि मैं हार्ड वर्ड्स जब बोलूंगी तभी तो वो मेरा काम करेगा, नहीं तो वो फिर से वही मैम कल दूंगा, परसों दूंगा, काम ही नहीं होगा ना ऐसे। Yes. तो So मैं that's आपका a पॉइंट ऑफ व्यू good share, Kiran ji. Now tell me, what is the question? मेरा क्वेश्चन ये है कि माय मॉम सेज कि तुमने बहुत हार्ड वर्क यानी बहुत हार्शली उसे बोला, तो उनको अच्छा नहीं लगा शायद, लेकिन आई डोंट केयर अबाउट हर, क्योंकि काम करना है, सैलरी मिलती है, काम तो गवर्नमेंट को करके देना ही है और हम रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ना। तो माय मॉम सेज कि नहीं बड़े है, ऐसा है वैसा है, लेकिन काम तो मुझे करना ही होगा। समझ गया। तो सबसे पहले तो अपनी मम्मी को एक जादू की झप्पी दो और बोलो आई लव यू बट लेट मी टेक माय डिसीजन इन लाइफ, ओके, सो दैट योर मॉम इज कूल। नंबर 1 सर मेरे बॉस ने भी मुझे लास्टली यही बोला था, उसी का इम्प्रेशन मेरे मॉम पे पड़ा और उसी से ये शुरू हो गया, क्योंकि वो हमेशा बोलती तुम तो अच्छी बात करती हो, तो बॉस ने तुम्हें ऐसे क्यों बोला। तो आज फिर से वही अराइज हो गया। lot of disturbance, hold on। कीर्ति को म्यूट कर देना, कीर्ति की आवाज आ रही है। हाँ, अनम्यूट करके बोलो कीर्ति, सॉरी किरण। हाँ सर, तो मेरे बॉस ने 2-3 दिन पहले बोला था ऐसा कि तुमने बहुत हार्श वर्ड यूज किए, तो फिर वही आज लेकर मेरे मॉम ने मेरे ऊपर थ्रो कर दिया। लेकिन मैंने तो बोला बेसिकली कि आपको प्रॉब्लम किसकी समझनी है, मॉम इज नॉट इन योर जॉब, ओके। बॉस की बात जरूर सुननी है क्योंकि आप काम कर रहे हो, तो टेक हिज एडवाइस एंड से ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट या जो भी है ऑब्जर्वेशन, I will try to improve on it and try to improve on it, because if your boss is saying you have to do that, right? या जॉब छोड़नी है, दूसरी जॉब ढूंढनी है। नहीं जॉब तो नहीं सर, जॉब तो छोड़नी तो अगर है। जॉब नहीं छोड़नी है तो बॉस की बात माननी पड़ेगी ना, क्योंकि एक बहुत बड़ा पुराना रूल है हमारा। नंबर 2 रूल्स, नंबर 1 इज बॉस इज ऑलवेज राइट and number 2 is that if boss is not right then go back to rule 1, boss is always right, right? हाँ सर, पर मैं ये पूछना उसी चाहती हूँ जॉब कि में मैं काम बात करना कैसे है करूँ तो अब? बॉस इज राइट, फिनिश, फुल स्टॉप, उसकी बात मान लो। मॉम हाँ को सर, पर जादू की बात झप्पी कैसे दो करनी है? और उनको बोलो आई लव यू बट लेट मी डू माय जॉब। यस संजीव, गो अहेड। I would say it is pretty simple. Kiran, just try to introspect. आज के टॉपिक में सब कुछ है, just introspect कि अगर आपको बॉस भी बोल रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है, how can you reformulate it? For example, I'm giving just a hint, don't have to follow me. आपको दिखता है ये अंकल जी 8 दिन में काम है, 8 दिन में आपको सबमिट करना, 8 दिन में नहीं देते लेकिन आधे घंटे में खत्म करके देते हैं, तो आप उनको टाइम ही 4 दिन का दो ना, क्यों 8 दिन का टाइम दे रहे हो? एंड देन टेल हिम कि अच्छा आपको टाइम चाहिए,
आप कल कंप्लीट नहीं करके दोगे तो कल फिर आपको लेटर दे दूंगी, फिर मुझे मत बोलना. नाउ यू आर नीदर हार्श और समथिंग. इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, आप इंटरनली क्या करते हो, दैट्स ऑल. एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज. दैट्स जस्ट अ हिंट आई एम गिविंग यू, नथिंग मोर देन दैट. See, towards the end, I will just say, first of all, that whatever is the outside situation should not impact you. तो उसका impact minimum करो अपने ऊपर, तब आप एक नॉर्मल तरीके से पेश आओगे. फिर अगर हार्ड रूल भी अगर बोलना है आपको तो आप प्यार से सुना सकते हो ना. अब जज कोई जब फांसी की सजा देता है तो एक्साइटेड होकर गुस्से में सनी देओल जैसे नहीं देता ना, वो तो बड़ी कूलली जजमेंट देता है. करेक्ट? May I intervene? May I intervene? Yes, Kalpana, you got. Firm, she should be firm in her communication. That Absolutely. firmness in the communication should be communicated to the other guy. Instead of saying you get the letter tomorrow, I'll get the letter issued. एक आदमी का कैप्सूल देने से काम चल जाता है, तो थोड़ा थोड़ा उसकी डोज बढ़ाओ ना. आप सीधा ही इंजेक्शन लगा दोगे तो फिर गड़बड़ है. Okay, got it. तो Thank you, कल्पना जी. आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी. एक दिन काम नहीं किया तो दूसरे दिन थोड़ी और डोज बढ़ाओगे, फिर तीसरे दिन और डोज बढ़ाओगे, चौथी डोज में काम हो सकता है. Thank you, Kalpana ji. We have already overshot the time. I suddenly saw that we are 15-16 minutes over time, so we will need to close the session. Thank you all for your participation. And Kiran ji, introspect, as Sanjeev said, you will get the right answer, and otherwise you can have a one-to-one communication with me maybe later, and we will discuss this. Okay. So with this, we come to the end of the session. No scope for any last questions from anybody. Thank you very much for your participation. It was a wonderful session. Enjoy a great day. Enjoy a great week. We will meet again next week, again Wednesday, 8 p.m. Be ready to join with full excitement and energy and your sharing. Thank you very much. Enjoy a great day. Bye. Thank you, sir. Thank you. I like the session. Thank you.